Okay, so now this is the point where I will say you guys that this is the last topic of permutations, and that's it. We are done with permutation then, and then in the next sessions we will move on with combinations, and in no time you will understand what permutation is and what combination is, and the magic is really the magic is यहाँ तक क्या अपन करते आए, and we haven't used much of this formula. So if in case you forgot, I'll just write down the formula right in front of you. This is not the magic, this is the formula which we haven't used at all. So that is how you have to study permutation and combination. Pure logic, nothing else. So let's just move on to this new topic of permutation. Then we are done with the permutation. That is the type 6 of the permutation, type 6, and it says that circular permutation. Now before starting this, I must tell you that this is my favorite, and whenever I say कि ये मेरा favorite है, then it is very simple. मतलब I like 0 factorial because वहाँ पे 1 आता है आंसर, and I like lot of things जो बहुत सोपी होती है, सोपी एकदम सरल, and circular permutation is one of them. I can rather say it's really cool permutation जिसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है. The formula is very simple, which is in front of you, and the things are very simple around here. And what it is, let's take for an example, just so you understand it properly. I'm just taking an example so that you don't have to have a blur picture of what we are going to do in this session further. So let's just say this is a round table. Okay, here are 1, 2, 3, 4 chairs. Okay, how many possible arrangements are going to be happen over here? Now the very first thing is that कि कोई ना कोई किसी ना किसी की पोजीशन यहाँ पे फिक्स होंगी. Let's say this is blue की पोजीशन फिक्स हो गई. I am coloring the box now. So blue is going to sit over here. तो इसका मतलब जैसे, क्योंकि since it is a circle, it has no starting point. Every point is a starting point. एंड इसलिए जब आप परम्यूटेशन निकालते हो, जब कोई चीज सर्कुलर में अरेंज कर रहे हो आप, जब कोई चीज आप सर्कल में अरेंज करते हो, तो व्हाट यू डू इज यू फर्स्ट फिक्स अ पॉइंट. जैसे कि मैं यहां से ड्रॉ कर रहा हूं अभी, तो आई एम फिक्सिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और मैं यहां से सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं और यहां पे मैं वापस एंड कर रहा हूं. ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट आई एम एंडिंग इट, एंड दस ये मेरा पोजिशन फिक्स हो गया. एंड वॉट एवर द यहाँ पे मैं जो भी करूंगा अरेंजमेंट्स, दैट विल हैव द चेंजेस एक्सेप्ट एट दिस पोजिशन. एंड दैट is why let's say I have to arrange peoples on this table. So in this table I have selected the blue as a fixed position. Then the arrangement out of these 4 people, how many people are going to get arranged? Let's say यहाँ पे green आएगा पहले, इसमें यहाँ पे ये कलर, ये कौन सा कलर है मेरे को मालूम नहीं अभी भी, ये पिंक है, यहाँ पे पिंक आएगा. वन ऑफ द फॉर्म ऑफ पिंक और मैजेंटा इट इज, आई गेस. So let's just keep it simple. Let me take the color that I know, blue. ओके, ये पहली पोजीशन हो जाएगी. अब दूसरा केस क्या होगा कि ब्लू और ग्रीन एक दूसरे की पोजीशन स्वैप कर लेंगे. यहां पे ब्लू और यहां पे ग्रीन. लेट्स जस्ट गेट रिड ऑफ दैट बॉक्स ओनली. यहां पे ग्रीन, ये हो गया एक पॉसिबिलिटी. दूसरा पॉसिबिलिटीज, दीज टू विल रिप्लेस. तीसरा पॉसिबिलिटीज, दीज टू विल रिप्लेस. अगेन चौथा पॉसिबिलिटी फिर और आएगा कि ये पिंक और ये ब्लू यहां पे रिप्लेस होंगे, क्योंकि यहां पे तो ग्रीन के साथ रिप्लेस हुआ वो. ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी आएगी भाई? 3 नंबर है और 3 पोजीशन है ना सर, सीधा सीधा ब्लैंक्स ड्रॉ करो ना, 3, 2, 1, 3 फैक्टोरियल लिखो ना. तो बस वही कर रहे हैं यहाँ पे अपन. सर्कुलर परम्यूटेशन इज दैट सिंपल कि जितने भी नंबर्स है उसमें से एक माइनस करके आपको फाइनली अरेंजमेंट मिलेगी. जैसे इन आवर केस वी हैड 4 पीपल्स आउट ऑफ विच जिसकी एक पोजीशन मैंने फिक्स कर दिया. सिंस बिकॉज इट्स अ सर्कुलर फॉर्म, we don't have a starting point, and until and unless I don't have the starting point, I cannot arrange the things. Arrangement एक order में होती है. That is what I have started with. Permutation is nothing but arranging things in some particular order. Order is what important is over here. In order to get an order in a circular permutation, in a circular form, you need to select and fix some point. Exactly. And we are selecting this point as a fixed point. So even this can be fixed, or this can be fixed, or this can be fixed, or this can be fixed. Either one of them can be fixed, and you can do the different possible combinations and or permutations. And that is what you will get over here is
3 फैक्टोरियल which is equal to 6. वही अपना आंसर आया था. So what circular permutation is? Nothing but when you permute some things in circular form, in such case you gotta have to first fix some position, and after that you'll have to permute the remaining things. Okay, the remaining things. So let's just move on with the examples and get a clear picture and proper understanding how do you work on with circular permutation. Okay, so the formula is very simple. So it might be the case that I will use this formula. Okay, because that is what we always do. We always draw the blanks, we always consider them, and we always write the number, and ultimately we take the multiplication. Okay, so that is what we are going to do, and that is what we always do. So this might not hurt us. You know, this might not hurt us. Okay, so example number 27. In how many ways 6 boys, 5 girls dine at a round table such that no 2 girls are to sit together? Okay, so let me just draw a circle over here neatly. Okay, there is no space. Let me just create a space. Okay, I am with my dining table, that is round. Okay, round dining table, उन्होंने बोला dine at round table, and no 2 girls are to sit together. Let's say boys and girls है ना, और कितने boys हैं? 6 boys हैं. Let me just take different color for boys now. 6 boys. And how many girls? 5. Okay, 5 girls are there. So let me just draw the boys. Let me say consider यहाँ पे पहला boy है. Okay, यहाँ पे दूसरा boy है, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे पांचवा और यहाँ पे छठवा. Okay, so इस हिसाब से boys यहाँ पे बैठे हैं. Okay, now girls की पोजीशन ऐसी है. अब देखो यहाँ पे काफी अच्छा खासा स्पेस अवेलेबल है गर्ल्स के लिए बैठने को. सो यहाँ पे अगर कोई एक लड़की आ गई तो यहाँ पे वो लड़की आ नहीं सकती. वो यही बोल रहे हो लोग कि यहाँ पे लड़की नहीं आ सकती बॉस. सो यहाँ पे अगर कोई लड़की आ जाती है तो बस वो इन दोनों के बीच में आएगी. नेक्स्ट गर्ल के लिए पोजीशन यहाँ पे है, नेक्स्ट गर्ल के लिए पोजीशन यहाँ पे है, नेक्स्ट गर्ल के लिए पोजीशन यहाँ पे है, एंड नेक्स्ट के लिए यहाँ पे, और उसके बाद में उसके लिए यहाँ पे है. सो हाउ मेनी पोजीशंस आर देयर फॉर, और किसके अरेंजमेंट बोलिए उन्होंने? सबके अरेंजमेंट बोलिए इस हिसाब से कि 2 गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर. इट्स सिंपल, इट्स वेरी सिंपल. टोटल बॉयज की पोजीशंस कितनी थी? बॉयज की पोजीशन में कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, बॉयज की पोजीशन तो यहीं पर ही है. 1 2 3 4 5 6. सो बॉयज अपने आप में कितने हिसाब से परम्यूट हो सकते हैं? 6 फैक्टोरियल बेस में. एग्जैक्टली, क्योंकि 6 बॉयज है तो 6 बॉयज के लिए 6 पोजीशंस है, और 6 पोजीशंस में कहां पे भी परम्यूट हो सकते हैं वो. एग्जैक्टली, बट द कॉन्सेप्ट ओवर हियर इज नाउ कि 6 बॉयज में से किसी ना किसी एक बॉयज की पोजीशन फिक्स हो जाएंगी. लेट्स से कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट आ गया. नॉट ऑलवेज दिस. लेट्स से तुम हमें बोलोगे कि सर आप यही हमेशा लेते हो, तो ये नहीं, चलो बेटा ये ले लेते हैं. यहां से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है 5 से. ठीक है, तो यहां से स्टार्टिंग, यू गो सर दिस वे, तुम ऐसे तरीके में जाओ या तुम ये तरीके में जाओ. मेरे को बोलने का क्या, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसा भी परम्यूट करो, इट डजंट अफेक्ट, क्योंकि तुम स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही रहता है. ओके, सो 6 - 1 5 फैक्टोरियल आर द वेज इन विच बॉयज कैन बी अरेंज्ड, क्योंकि एक बॉय तो हमेशा फिक्स रहेगा. सिमिलरली गर्ल्स के लिए होगा क्या? नहीं, पूरे अरेंजमेंट में से सिर्फ कोई भी एक फिक्स होगा. अब बाकी सब एक दूसरे में अरेंज हो सकते. लेकिन कॉन्सेप्ट ये है, पॉइंट ये है कि यहाँ पे 5 गर्ल्स है, और गर्ल्स के लिए पोजीशंस कितनी है भाई? देखो गर्ल्स के लिए 1 2 3 4 5 6 पोजीशंस है, जिसमें से सिर्फ 5 लड़कियां आ सकती है. एग्जैक्टली. और ये कैसे हो सकता है भाई? 1 2 3 4 5 पोजीशंस, 6 पोजीशंस और 5 लड़कियां, तो पहले पोजीशन पे 5, फिर 4, फिर 3, फिर गलत 6. टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितने अपने पास में? टोटल नंबर ऑफ चेयर्स है अपने पास में 6. 1 2 3 4 5, हाँ 5 पोजीशंस, 5 चेयर्स, और ओके सॉरी, हाँ ओके यस, यहाँ पे राउंड टेबल होने की वजह से वो यहाँ पे डॉट्स लाइन में मेरे बैठ नहीं रहे थे. ओके ठीक है. एनीवेज दैट डजंट अफेक्ट मी. मैं यहाँ से कंसिडर कर लेता हूँ 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5. मतलब
5 जगह पे से 6 जगह पे से 5 लड़कियां मेरी कहीं पे भी बैठ सकती है, समझो, ठीक है। मेरा बहुत बड़ा परिवार है ये, बाप रे, बहुत बड़ा परिवार हो गया। सो मेरे पास में टोटली बताओ, मेरे को टोटली बताओ, मेरे पास में टोटल प्लेसेस थी 6 और मेरे पास में मेरी लड़कियां कितनी थी, यू नो, ओनली 5। हाउ मेनी गर्ल्स आर गेटिंग अरेंज्ड इन हाउ मेनी प्लेसेस? 5 गर्ल्स आर गेटिंग अरेंज्ड आउट ऑफ 6 प्लेसेस। ओके, इन 6 प्लेसेस बोलेंगे, इन 6 प्लेसेस, नॉट आउट ऑफ 6 प्लेसेस, इन 6 प्लेसेस। सो इट इज नथिंग बट इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। इट इज नथिंग बट इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड दैट इज नथिंग बट द परम्यूटेशंस। अब इसमें एक्चुअली 6 फैक्टोरियल नहीं आता है, इसमें एक्चुअली आता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 इसलिए नहीं आएगा मल्टीप्लीकेशन में क्योंकि वी हैव ओनली 1 2 3 4 5 गर्ल्स, वी हैव ओनली 5 गर्ल्स। तो पहले लड़की के लिए, पहले लड़की को बैठने के लिए कितने चेयर है? 6 चेयर। दूसरे लड़की को बैठने के लिए कितने चेयर है? 5 चेयर। तीसरे लड़की को बैठने के पास में 4 चेयर। चौथी लड़की के लिए बैठने के पास में कितने चेयर है? 3 चेयर। और 5वीं लड़की के पास में कोई भी 2 चेयर है जिसमें से वो बैठ सकती है। अब आ रहा है समझ में? अगर तुमको लाइन से या थोड़ा भी कंफ्यूजन हुआ रहेगा तो अब मेरे बोलने पे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 6 फैक्टोरियल क्यों नहीं लिखा है और ये 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 क्यों लिखा है। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ, लेट मी ड्रॉ इट अगेन, हाँ, 5 लड़कियां हैं। ओके, ये मेरी 5 लड़कियां हैं, उसमें से पहली के पास में 6 चेयर है बैठने के लिए, लेकिन जैसे ही वो 1 चेयर पे बैठ जाएगी दूसरी के पास में सिर्फ 4 चेयर बचेंगे, 5 चेयर बचेंगे। जैसे ही दूसरी 5 किसी एक चेयर पे बैठ जाएगी, तीसरी के पास में सिर्फ 4 ही चेयर बचेंगे बैठने के लिए, और तीसरी जैसे बैठ जाएगी 1 चेयर पे, चौथी के पास में 3 चेयर्स बचेंगी, और जैसे ही चौथी किस पे 1 पे बैठ जाएगी तो मेरी जो लास्ट लड़की रहेगी, मेरी लास्ट जो बेटी रहेगी, वो बैठेगी सिर्फ और सिर्फ किसी 2 चेयर में से 1 चेयर पर। एंड देन मैं ये सबका मल्टीप्लीकेशन लूंगा क्योंकि ऑल ऑफ देम आर डिपेंडेंट, ऑल ऑफ देम आर डिपेंडेंट। हेंस बॉयज की अरेंजमेंट मेरे को मिल गई 120 वेज, गर्ल्स की अरेंजमेंट मिल गई मेरे को 720। ये दिस इज इक्विवेलेंट टू 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 का होना नहीं होना इज सेम, ठीक है। बट यहाँ पे बहुत अफेक्ट करता है 1, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट मैटर कर रही है। सो देयरफॉर टोटल नंबर क्या होगी फिर? इन दोनों में एडिशन होगा कि मल्टीप्लीकेशन होगा? एडिशन होगा, नहीं मल्टीप्लीकेशन होगा। हाँ में हाँ मत मिलाते चलो, क्योंकि जहां पे बॉयज बैठेगा उसके बेसिस पे यहाँ पे लड़कियां बैठेगी, जहां पे मेरे लड़के बैठेंगे उस बेसिस पे मेरी लड़कियां बैठेगी, है ना। नो 2 गर्ल सिट टुगेदर, दैट इज वाई मल्टीप्लीकेशन होगा 120 इंटू 720। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इज इक्वल टू ओके, हमारा भी होने में यही है, विच इज इक्वल टू 0 0, कितना बड़ा नंबर है यार ये, 4 6 3। देख लो ये सही है क्या नंबर? नहीं होगा तो करेक्ट कर देना, इज जस्ट मल्टीप्लीकेशन, मैंने थोड़ा ओरली किया है, तुम कर लेना। ओके, सो दिस इज हाउ यू परम्यूट, दिस इज हाउ यू परम्यूट। ओके, so let's just do another example. Okay, in how many ways 5 beads of different colors can form a necklace? So मैं यहीं पे करता हूँ, ये मेरा नेकलेस 5 बीड्स से फॉर्म हो रहा है वो। ओके, ये ना सर्कल में लाइट कलर से लेता हूँ। हाँ, नाउ इट्स ओके। 1 2 3 4 एंड 5 बीड से मैंने ये सर्कल बनाना है, मतलब कैसे भी बनाओ तुम अभी, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर, हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर। अब डिफरेंट कलर है क्या? हाँ भाई डिफरेंट कलर है। सर्कुलर अरेंजमेंट होंगी, एग्जैक्टली और सर्कुलर अरेंजमेंट इस हिसाब से होंगी कि किसी ना किसी एक की पोजीशन फिक्स करना पड़ेगा मेरे को। लेट्स से कि मैंने इसकी पोजीशन फिक्स कर ली, नॉट इसकी पोजीशन क्यों फिक्स करना है मेरे को, मैं इसकी पोजीशन फिक्स कर लेता हूँ। कितने बचे मेरे पास में? 4 बीड्स, तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा मेरे पास में, एग्जैक्टली। अब क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, हाँ 5 बीड से
अपने को नेकलेस फॉर्म करना है ऑफ डिफरेंट कलर, तो यहाँ पे आ गया ये 24 वेज। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये आ जाता है कि सिंस देखो, अब ये मैं इसको लेट से नाम दे देता हूँ ABCDE। मैंने चालू किया D से। ओके, तो अभी मैं क्लॉकवाइज जाऊँ या एंटी क्लॉकवाइज जाऊँ, मैं दोनों तरीके से जाता हूँ। तो मैं अगर लेट से क्लॉकवाइज गया, मैं क्लॉकवाइज गया, तो क्लॉकवाइज कैसे जाऊंगा, मैं यहां से शुरुआत करूंगा। एग्जैक्टली तो यहां से मैं शुरुआत करूंगा, तो DEABC ये मेरा क्लॉकवाइज अरेंजमेंट हो जाएगा। ओके, और मैं एंटी क्लॉकवाइज आऊंगा, मतलब कहां से जाऊंगा मैं, अब यहां से ऐसे जाऊंगा और यहां पे एंड करूंगा। एग्जैक्टली तो वो क्या हो जाएगा मेरा DCBAE। यहाँ पे एंड में D आएगा ही, बट अपन उसको कंसिडर नहीं कर रहे फिलहाल। सो देखो यहाँ पे ये और ये दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। देयर इज नो एज सच डिफरेंस, क्योंकि तुम क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, तुमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, यू नो, क्योंकि वो सर्कुलर परम्यूटेशन है। एंड सिंस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जाने में इधर कुछ परम्यूटेशन में फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, तो what I have to do is now that I will divide it by 2। क्यों डिवाइड इट बाय 2 करूंगा, क्योंकि क्लॉकवाइज परम्यूटेशन एंड एंटी क्लॉकवाइज परम्यूटेशन आर द सेम। इसका मतलब एग्जैक्टली मेरे कितने परम्यूटेशन हो रहे, दोनों मिला के एक ही हो रहा है, क्योंकि दे आर द सेम थिंग। एंड सिंस दे आर द सेम थिंग, आई हैव टू डिवाइड इट बाय 2, एंड दैट इज नाउ माई फर्दर 12 ways in which I can permute 5 beads of different colors to form a necklace। Exactly सिर्फ 12 ही तरीके हैं, बिकॉज क्लॉकवाइज तुम अलग अलग करके देख लेना पोजीशन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करोगे ना तुम। सो लेट मी जस्ट गिव अ एग्जांपल। ये 1 2 3 4। ओके, सो यहाँ पे मेरा स्टार्ट है ABCDE, देन कम्स नेक्स्ट let me just take now another EABCD, then this over here DEABC, and यहाँ पे ले लेता हूँ मैं CBAD and E। ना यहाँ पे तुम इसमें से नोटिस करोगे ना, तो दो तो एक जैसे ही है। एग्जैक्टली दो तो एक जैसी है। कौन से, ये देखो, ये मेरा अगर ये दोनों एकदम सेम है, बस थोड़ी पोजीशन शिफ्ट हो गई है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे करते करते तुम एलिमिनेट करते जाओगे 24 में से। जब तुम एलिमिनेट कर दोगे तो तुम्हारे पास में सिर्फ और सिर्फ 12 ही बचेंगे, विच इज एग्जैक्टली हाफ। और क्योंकि ये होता है इसलिए क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ पे मैटर करता है, इसलिए। यहाँ पे क्यों नहीं हुआ वो, क्योंकि यहाँ पे देयर वर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे 5 बॉयज और 5 गर्ल्स, 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स थे। यहाँ पे सिर्फ 5 बीड्स थे जिनमें अपन अरेंजमेंट कर रहे थे। उसी हिसाब से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अब इसमें आप देखोगे ना, तो इसमें आपको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें बोला गया है ओनली 7 पीपल कैन सिट इन अ राउंड टेबल सो दैट ऑल शैल नॉट हैव द सेम नेबर इन एनी 2 अरेंजमेंट। एनी 2 अरेंजमेंट मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में आपके पास में 2 अरेंजमेंट नहीं रह सकते, 2 नेबर्स नहीं रह सकते। सो इसका मतलब इफ आई हैव दिस सर्कल विथ मी, ओके, एंड आई हैव 7 पर्सन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो मैं जब क्लॉकवाइज जाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, तो मेरे पास में 7 अलग नेबर्स होने चाहिए, और यहां से मैं जब यहां पे आऊंगा तब मेरे पास में अलग नेबर होने चाहिए। तो क्योंकि यहां पे ये मेरे को परम्यूटेशंस अलग अलग देगा, एंड आई वांट इट डिफरेंटली। पहली बात तो टोटल 7 में से 1 गए, दैट विल गिव मी 6 फैक्टोरियल, बट स्टिल क्योंकि मेरे को परम्यूटेशंस अलग अलग चाहिए, एंड सिंस देयर आर 7 पीपल्स, किसी ना किसी एक में the permutation will be the same because clockwise और anti clockwise होने की वजह से it doesn't affect much। divide by 2, divide by 2, we are taking exactly half because ultimately it will give me the same positions in some or the other way because it's a circular table, that is why, and thus 720 का half is 360 ways। that this was real fast example क्योंकि I want you to do it again, ये एग्जाम्पल को। ओके, लास्ट एग्जाम्पल को आप दोबारा फिर से खुद से करने की कोशिश करिए। मैंने सॉल्व करके रखा है डायरेक्टली फास्ट में,
Okay, so here guys, congratulations, you deserve a bit of drum roll. You know drum roll था ना वो वैसा, claps also, that you have successfully completed permutations, all the different types of permutations, circular permutations. There are lots of things that you have understood, you have learned out. Now it's the time to use this weapon. Go out on the field and try some examples of permutations and see if you can do or not. नहीं हो रहा है तो come on these videos again and again, जब तक कि तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, जब तक कि तुमको मेरी मेथड समझ में नहीं रही कि हाउ सर इज इंटरप्रेटिंग सम क्वेश्चन. एंड that's it from me, guys. We are done with permutation, and in next sessions we will cover up the next part, that is combination. So that's it from me, guys. Thank you.